اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قیامت سے پہلے کا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، قرب قیامت سے پہلے کا ایک نقشہ بتایا کہ ایسا ہوگا، یعنی بے حیائی اتنی پھیل چکی ہوگی، بے شرمی اتنی پھیل چکی ہوگی کہ ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چوراہے پر بیچ سڑک پر غلط کام کرے گا۔ تہذیب کے دائرے میں جملے بول رہا ہوں ورنہ کچھ اور بھی بول سکتا تھا۔ غلط کام کرے گا مطلب سمجھ جائیے آپ، اس سے زیادہ مہذب جملے ہمارے پاس نہیں۔ ایک آدمی، ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سڑک پر، روڈ پر سرے عام غلط کام کرے گا، اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا، اس زمانے کا سب سے زیادہ شریف انسان اور نیک انسان وہ ہوگا، متقی وہ ہوگا جو اپنے گھر سے نکلے گا، ان لڑکے اور لڑکی کو سڑک پر چوراہے پر غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ ان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا بیٹا تم یہ کام جو کر رہے ہو وہ یہاں مت کرو، یہ سڑک ہے، یہاں سے میری ماں بہن بیٹیاں گزرتی ہیں، یہاں یہ کام نہ کرو، ایسا کرو، میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں روک نہیں رہا ہوں، یہ کام تمہیں کرنا ہے تو یہ میرا گھر بنا ہے، اس گھر کے پیچھے دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس میرے گھر کی دیوار کے پیچھے یہ غلط کام کر لو، یا یہ میرا کھیت ہے، اس کھیت میں چلے جاؤ، جھاڑیاں بڑی بڑی ہیں، ان جھاڑیوں میں چھپ کر یہ کام کر لو، بیٹا یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہاں میری ماں بہن بیٹیاں گزرتی ہیں۔ جو منع نہیں کر پائے گا برے کام کو کرنے کے لیے کہے گا، لیکن یہ کہے گا یہاں مت کرو، یہ جا کر اس کھیت میں کر لو یا اس دیوار کے پیچھے کر لو، یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا۔ سوچئے ابھی کتنی بے شرمی پھیلنا باقی ہے۔ اتنا تو ہو ہی چکا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہیں، اور کسی پارک میں چلے جاؤ تو گلے میں ہاتھ ڈال کر، اور کیا بولوں میں آپ کو، گال سے گال اور ہونٹ سے ہونٹ، اور تو یہ تو عام سی بات ہو چکی ہے، یہ تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا تو ویسٹرن کلچر نے اپنے پیر جما لیے ہیں، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی؟ کیا ایسی جگہ نہیں پڑھتی جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ میں ہوں؟ کیا کالج کی کینٹین میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ایک ساتھ چائے نہیں پیتی؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، ہم اندازہ تو لگائیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت بخاری کی روایت، حضرت میمون کی وہ روایت اٹھاؤ، کہتے ہیں کہ میں بہت بعد میں اسلام لایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت رجم نازل ہوئی، جب پتھروں سے مارنے والی آیت نازل ہوئی پتھروں سے، یعنی زناکار مرد اور زناکار عورت کو، زانی مرد اور زانیہ عورت کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے لڑکا اور لڑکی اور پھر بھی زنا کیا ہوا ہے دونوں نے، تو دونوں کو پتھروں سے مار ڈالو۔ حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں آج ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ شادی شدہ زناکار مرد اور زناکار عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا اللہ کے رسول، آج سے 20-25 سال پہلے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک بندر اور ایک بندریا لیٹے ہوئے تھے اپنے پاس، اچانک ایک دوسرا بندر آیا تو کنکھی ماری اس بندر نے، یہ بندریا اس کی تھی جس کے ساتھ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ ایک دوسرا بندر آیا، ہنسیے نہیں، یہ معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرا بندر آیا اور اس نے کنکھی ماری آنکھ سے، مطلب بندریا سے کہا، بندریا نے دیکھا سو رہا ہے اس کا بندر، وہ بندریا وہاں سے بھاگی، اور اس بندر کے ساتھ جو دوسرا بندر تھا اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اور آ کر پھر لیٹ گئی اپنے بندر کے پاس۔ بندر جب اٹھا تو اس نے پسینے کی وہ بندر سمجھ گیا کہ میری بندریا کہیں ہتھوڑا بار کے آ گئی ہے،
कहीं काम लगा के चली आई है। वो बंदर चीखा, उस बंदर की आवाज सुनकर बहुत से बंदर आ गए और वो बंदर अपनी भाषा में करके उस सारे बंदरों से इशारा करने लगा। ये सबने सूंघी उसकी बदबू, उस बंदरिया ने एतराफ किया। अब उस बंदर को पकड़ के लाया गया जिसने उसके साथ गलत काम किया। अमर इब्न मैमून कहते हैं कि मैंने जब इस मंजर को देखा कि वो बंदर पकड़ के लाया गया तो सारे बंदर पत्थर इकट्ठा किए और उन बंदरों ने उस बंदर को जिसने उसके साथ जिना किया था, सारे बंदरों ने मिलकर उस पत्थर से उस बंदर को मारा जिसने उसकी बंदरिया के साथ गलत काम किया, और बंदरिया को भी मारा। बंदर और बंदरिया दोनों को मार डाला, दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया। और उन दोनों ने गड्ढा खोदा, बंदरों ने, और गड्ढा खोद कर बंदर और बंदरिया दोनों की लाश को उसके अंदर डाल दिया और फिर अपने हाथों से मिट्टी देने लगे। आए अल्लाह के रसूल, ये मंजर मैंने इस्लाम लाने से पहले बंदर और बंदरियों को देखा है, यानी बंदर और बंदरिया भी अपने समाज के अंदर जिना को पसंद नहीं करते हैं, जिनाकारी और बदचलनी को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने अमर इब्ने मैमून का हाथ पकड़ा और उठाया और उठा कर कहा, सहाबियों सुनो, ये मैमून क्या कह, अमर इब्ने मैमून क्या कह रहे हैं? अरे सुनो, ये क्या कह रहे हैं? अरे देखो, आज अल्लाह ने यह आयत हमारे लिए नाजिल की है, बंदरों को भी पसंद नहीं है कि जिनाकार मर्द और जिनाकार बंदर और जिनाकार बंदरिया हमारे समाज में जिंदा रहे। बंदर भी जिनाकार बंदरों को, बंदर मिलकर बंदर जिनाकार बंदर को मार डालते हैं और बंदरिया को भी मार डालते हैं। देखो अमर इब्ने मैमून से सुनो मेरे प्यारे साथियों, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, वो बुखारी जो कुरान के बाद सबसे सही किताब, अस्सहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह के बाद जिसको सबसे बड़ा कुरान के बाद दर्जा मिला है। आप अंदाजा लगाओ कि उसमें ये बताया गया है कि बेशर्मी और बेहयाई बंदरों में भी, जानवरों में भी पसंद नहीं है। आए मालदार पाड़ा के लोगों, यहां से पूरे बंगाल और यूट्यूब के जरिए पूरे दुनिया में यह मैसेज जाना चाहिए कि जब जानवरों के अंदर बदचलन बंदर और बंदरियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे समाज में इन जिनाकार लड़कों और लड़कियों को रहने का अधिकार कैसे दे दिया जाए? ये खुले हुए सांड कभी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और किसी की इज्जत व आबरू से खेल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों, इसीलिए शरीयत ने गैर शादीशुदा आदमी को, जिसकी शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा लड़का लड़की, शरीयत ने कहा कि अगर इनसे जिना हो जाए तो इनको पत्थरों से नहीं मारा जाएगा, 100 कोड़े लगाओ और लड़के को 1 साल के लिए शहर से निकाल दो, अपने इलाके से दूर कर दो, ये उसकी सजा है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि उस शहर से निकालने की सजा क्यों है? क्योंकि जब शहर में रहेगा तो जब तक वो रहेगा वो लड़की बदनाम होती रहेगी। अच्छा यही जा रहा था, इसी को कोड़े पड़े थे, अच्छा इसी ने फला की लड़की के साथ गलत काम किया था, इसलिए इसको भुलाने के लिए उस लड़के को शहर से निकाल दो, पहले तो 100 कोड़े मारो। अरब के अंदर तो 100 कोड़े जब मारे जाते थे तो बचता ही नहीं था कोई, वो चमड़े का कोड़ा होता था, चमड़े का। ये ऐसा कोड़ा थोड़ी होता था जैसे मारो कुछ लगे ही नहीं। और पीठ खोलकर, लुंगी पहनाकर पीठ पर चमड़े का कोड़ा मारा जाता था और पूरी पूरी ताकत से मारा जाता था। और 100 कोड़े मारने के लिए 10 आदमी तय होते थे। एक आएगा वो 10 मारेगा, अब तुम थक गए, हटो, अब तुम जोर से नहीं मार पाओगे, चलिए हटिए। 10 मारने के बाद दूसरा आता था, वो पूरी ताकत से फिर 10 कोड़े मारता था, हटो अब तुम थक गए। अब तीसरा आएगा, फिर तीसरा 10 कोड़े मारता था, अब हट गए। अंदाजा लगाइए, एक जिसको हम मामूली काम समझते हैं, एक फैशन बना लिया है जिनाकारी और मक्कारी को। गौर करो, 100 कोड़े, वो भी 10 आदमी मिलकर 10-10 मारेंगे, तब जाकर पूरी ताकत के साथ। और चमड़े का कोड़ा, सोचिए, लहूलुहान जिस्म, पूरी की पूरी पीठ से खून बह रहा है, कितनी जगह टाके लगाओगे, कितनी जगह सर्जरी करोगे, कितनी जगह मरहम पट्टी बांधोगे। इसलिए बहुत से लोग तो 100 कोड़े लगने से पहले ही मर जाते हैं, और बहुत से लोग अगर बच गए तो मेरे भाइयों फिर जिंदगी भर
कमर उनकी ऐसी नहीं रहती थी कि बिस्तर से उठ सकें और चल सकें और चलने के लायक हो जाएं। आप किसी की बहन बेटी पर इस तरीके से आसानी के साथ आप हाथ धोएंगे, नहीं चलेगा शरीयत के अंदर बहुत। और यही हाल लड़कियों का भी है। मेरे भाइयों, आज के समाज के अंदर जो आजादी दे रखी है मोबाइलों की, इसने माहौल को इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि आज ये सारी चीजें हमें मामूली नजर आती हैं। एक लड़का लड़की से बात करते हुए चले जा रहा है, ये मामूली आज बात समझ रखी है। जलसों में मैंने सुना है, बंगाल की जलसों में, साहब हमसे कह रहा है लड़का, मौलाना साहब चाय पीजिए, मैं आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं? साहब साली को लेने जा रहा हूं, बार बार फोन कर रही है, वो भी जलसा सुनने आएगा। तू कौन होता है साली को लाने वाला? बेगैरत, किसने मुंह से कह रहा है कि मैं साली को लेने जा रहा हूं? एक बहनोई होता कौन है अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर अकेले बैठकर लाने वाला, वो भी दीनी जलसों के अंदर? होता कौन है उसको स्कूल में छोड़ने वाला? ये तेरे बाप की शरीयत नहीं है। मौलवी जर्जीस बोलेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीयत फातिमा के बाप की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। कोई भी बहनोई अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर अगर बिठाल कर जलसे में लाता है, ये हराम काम है। स्कूल छोड़ने जाता है, हराम काम है। अगर उसकी बीवी भी इजाजत देती है, तब भी बीवी की इजाजत के बावजूद कोई हराम काम हलाल नहीं हो जाएगा। अपनी बीवी की मौजूदगी में साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में स्कूल छोड़ने जाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में कलियाचक घुमाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में मालदा ले जाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में लखनऊ और आगरा ताजमहल घुमाने जाओगे। जब बीवी की मौजूदगी में अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में जाओगे। और कोई देवर भी अपनी भाभी को नहीं ला सकता। होते कौन हो तुम? भाभी है, भाभी है तो भाई की बीवी है, भाई लेके जा। तुम कौन होते हो अपनी भाभी को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके से लेके आने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके छोड़ने वाले? सब भाई ने इजाजत दे दी थी, भाई ने कहा था भाभी को छोड़ दो। तो ये भाई के बाप का दीन नहीं है, ये फातिमा के बाप का दीन है। मेरे प्यारे साथियों, नोट करिएगा ये तमाम मसाइल, ये सुलगते हुए मसले हैं मुआशरे में। इन तमाम चीजों पर गौर होना चाहिए। समाज, आज मैंने जुमे के खुतबे में कहा था ना शादी के बारे में, ये समाज की जिम्मेदारी है। वान के हुलायामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, ये समाज की जिम्मेदारी है। मैंने जुमे में कहा था, फिर दोहरा दूं, क्योंकि जुमे के खुतबे में बहुत से लोग नहीं गए होंगे। मेरे भाइयों, समाज की जिम्मेदारी है। तकवे का मयार ये है कि जैसे ही लड़का और लड़की वाले खून का निकाह करा दिया जाए, 25-25, 30-30 साल तक बिठाए हुए हैं। इन लोगों से समाज के लोगों को डरना चाहिए। ये लोग समाज के लिए नासूर हैं, क्योंकि ये गैर शादीशुदा जिनकी उम्र 30 साल की हो रही है, कभी भी किसी की इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर सकते हैं। मैंने जुमे के खुतबे में खुलकर कहा था, खुले हुए सांड हैं, खुले हुए सांड। मैं फिर इस जुमले को दोहरा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो जुमला बोला है वो बिल्कुल सटीक जुमला बोला है। खुले हुए सांडों से अपनी गायों को बचा कर रखिए। और लड़कियां भी अगर गैर शादीशुदा हैं, ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, 20-25, 30 साल की बैठी हैं, उनकी भी शादी करा दो, क्योंकि लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं गलत काम करने में। जब तक लड़की ना चाहे गलत काम हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की आमादा ना हो, जिना हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की अपने घर से न जाए, कोई होटल में बुकिंग हो ही नहीं सकती है। जब तक लड़की न चाहे, जिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिनाकारी और बदचलनी के मामले में लड़की लड़के से ज्यादा खतरनाक होती है, और इसीलिए शरीयत ने और कुरान ने लड़की का नाम पहले लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का नाम लिया, बाद में लड़के का नाम। इसलिए लड़कियां अगर 25-30 साल की बैठी हैं, उनकी जल्दी से शादी कराइए। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है, अगर चाहते हो कि तकवा और परहेजगारी बनी रहे। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन समझ लेना कि ऑपरेशन की जरूरत थी, मैंने ऑपरेशन कर दिया होम्योपैथिक दवा से। अब ये मर्ज जाने वाला नहीं था, इसलिए
बस 1.5 घंटा हो गया है, 12:15 तक बोलना था, 12:20 हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों। 11:15 से 12:15, 1.5 घंटा काफी है। और फिर हमें तो कहा था उमर साहब, मैं तो आधा ही घंटा बोलूंगा क्योंकि 1 घंटा का मैं जुमे का खुतबा दे चुका हूं, आप डबल थोड़ी मेहनत ले सकते हैं। लेकिन चलिए, वो तो एक मजाक की बात थी। लेकिन मेरे भाइयों, इन चीजों को समझिए, तकवा पैदा करिए, अपनी जिंदगी में तकवा लाइए।